नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम न्यूज रूम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर देश दुनिया के कोरोना आंकड़ों पर। विश्व में कोरोना के अब तक 4 करोड़ 18 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं भारत में यह संख्या 77 लाख से ज्यादा हो गई है। गुजरात में कोरोना के अब तक 1 करोड़ 64 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। और आइए अब नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। करजन में कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने किया प्रचार, मतदाताओं में भाजपा कांग्रेस के प्रति नाराजगी। एनपीएसएस के पूर्व अध्यक्ष मुकेश दीक्षित का सदस्य पद रद्द करने की मांग, नहीं होते बैठक में शामिल। और त्योहारों में बढ़े आलू प्याज के दाम, नागरिकों पर कोरोना के साथ पड़ी दोहरी मार। करजन शिनौर विधानसभा बैठक जीतने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही मैदान में हैं और आज इसी क्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने शिनौर के बालसर में एक चुनावी सभा का आयोजन किया। करजन बैठक के उपचुनाव 3 नवंबर को प्रस्तावित है। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल इस बैठक को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। भाजपा के नेता, सांसद और विधायक जनसंपर्क कर डोर टू डोर चुनाव प्रचार में जुटे हैं। वहीं गुजरात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ने शिनौर के मालसर में एक चुनावी सभा संबोधित की। अमित चावड़ा ने कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय पटेल को जिताने का लोगों से आह्वान किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद नारायण राठवा, विधायक और प्रदेश के नेताओं की भी उपस्थिति रही। 8 विधानसभा विस्तार अबડાસાથી શરૂ કરીએ तो अबડાસા, धारी, मोरबी, લીમડી, ગઢડા, કરજણ, કપરાડા અને ડાંગ 8 વિધાનસભા વિસ્તારના મતદારો પૂછી રહ્યા છે કે આ પેટા ચૂંટણી કેમ આવી। 8 વિધાનસભા વિસ્તારના મતદારો કહી રહ્યા છે કે અમે તો મત આપી ને પંજાના નિશાન પર 5 વર્ષ માટે ધારાસભ્ય ચૂંટીને મોકલ્યો હતો। એવું તો આ ધારાસભ્યને શું થયું કે એમણે અધવચ્ચે રાજીનામું આપવું પડ્યું? એવું તો એને શું દુઃખ આવ્યું કે એણે પોતાની જાતને વેચવી પડી? એણે મતદારો સાથે વિશ્વાસઘાત કરવો પડ્યો? એણે પ્રજાના પક્ષ સાથે ગદ્દારી કરી? એણે જનાદેશનું અપમાન કર્યું અને એના પાપે આ પેટા ચૂંટણીઓ આવી છે। અહીંયા વાત કરી કે ભારતીય જનતા પાર્ટીને એવી કોઈ જરૂર નથી કે કોઈ ધારાસભ્ય એમનામાં આવે અને એનાથી એની સરકાર બચી જવાની હોય કે એની સરકાર તૂટતી અટકી જવાની હોય, પણ સત્તા લાલસા રાજ્યસભાની એક સીટ માટે એમણે 8 જેટલા ધારાસભ્યોને ભ્રષ્ટાચારથી ભેગા કરેલા કરોડો રૂપિયાથી ખરીદ્યા અને ભારતીય जनता પાર્ટીની સત્તા લાલસાને કારણે, દલ બદલની નીતિને કારણે આજે ગુજરાતની જનતા પર આ પેટા ચૂંટણીઓ આવી છે અને આ પેટા ચૂંટણીઓમાં જે કરોડો રૂપિયા ચૂંટણી પંચનો ખર્ચ થવાનો એ તમારા ને મારા ટેક્સના પરસેવાના પૈસાથી ખર્ચ થવાનો અને જે કરોડો રૂપિયા ભાજપે ભ્રષ્ટાચારથી આ ધારાસભ્યોને આપ્યા એ એમના ઘરની તિજોરીઓ ભરાવાની। અહીંયા કહ્યું કે 52 કરોડની ઓફર થઈ હતી। આપણે નથી કહ્યું, એમણે ટીવીમાં કીધું, સાંભળ્યું તો કઈ? જેની 52 રૂપિયાની ઓફર નથી થતી એને તમે મત આપીને ધારાસભ્ય ચૂંટ્યો। કોંગ્રેસ પાર્ટીએ પંજાનું નિશાન આપ્યું એટલે 52 રૂપિયાની औकात નથી એવા વ્યક્તિને 52 કરોડની ઓફર થઈ, એ તમારા કારણે ઓફર થઈ। नगर प्राथमिक शिक्षा समिति की 7 सामान्य सभा में अनुपस्थित रहे सदस्य मुकेश दीक्षित का सदस्य पद रद्द किए जाने की मांग विपक्ष के नेता कर रहे हैं। वडोदरा महानगर पालिका संचालित नगर प्राथमिक शिक्षा समिति की सामान्य सभा में समिति के पूर्व उपाध्यक्ष मुकेश दीक्षित 7 बार अनुपस्थित रहे हैं। इस मामले विपक्ष के नेता नरेंद्र जायसवाल और नलिन मेहता ने आपत्ति जताई है। नगर प्राथमिक शिक्षण समितिનું જે બોર્ડ બેઠું 16/1/2017ના દિવસે તે દિવસે ડેપ્યુટી ચેરમેન તરીકે મુકેશભાઈ દીક્ષિતની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી। 2.5 વર્ષ પૂર્ણ થયા બાદ
એ હટી ગયા અને એમની જગ્યાએ નવા 2 ચેરમેન અને ડેપ્યુટી ચેરમેન આવ્યા. ત્યારબાદની જે સભાઓ થઈ 8/6/2020થી જે સામાન્ય સભાઓ થઈ એમાં મુકેશ દીક્ષિત સાહેબ તમામે તમામ 7 સામાન્ય સભાઓમાં ગેરહાજર રહ્યા અને અંદાજિત 21 જેટલી ઉપસમિતિઓમાં ગેરહાજર રહ્યા. અમારા તરફથી શાસન અધિકારીશ્રીને ધ્યાન દોરવામાં આવ્યું હતું અને કોર્પોરેશનના કાયદા મુજબ અધિનિયમ 61/1947ની કલમ 7 અન્વયે 1માં નિયમ છે, કોઈ પણ સભ્ય કોર્પોરેશનનો હોય કે શિક્ષણ સમિતિનો હોય 3 સભામાં સતત ગેરહાજર રહે તો ઓટોમેટિકલી એનું નામ સભ્યપદ એનું રદ થઈ જાય અને એ ઘેર બેસી જાય. એટલે અમારે ધ્યાન દોરવા છતાં પણ આ કોઈપણ જાતની કાર્યવાહી ન થઈ ત્યારે અમારે આ સ્ટેપ લેવું પડ્યું અને મીડિયા સમક્ષ ને બધા સમક્ષ હાજર થવું પડ્યું કે ભાઈ અમારા કહેવા છતાંય મુકેશ દીક્ષિતને હાજર નથી રહ્યા એ બાબતે કોઈપણ જાતનું નોટિફિકેશન નથી આપવામાં આવ્યું કે સભ્યપદ રદ કરવામાં નથી આવ્યું. એટલે અમે વિપક્ષે મેં અને નલિનભાઈએ સદર શાસન અધિકારીશ્રીને એક પત્ર લખીને જાણ કરી કે આમનું સભ્યપદ રદ થવું જોઈએ. त्योहार सर पर है और ऐसे में आलू और प्याज के दामों में बढ़ोतरी से पहले ही आर्थिक महामारी से जूझ रहे लोगों की आर्थिक दिक्कतों में और इजाफा हो रहा है. प्याज की बढ़ती कीमतों से लोगों को फिलहाल राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है. प्याज के दाम 60 रुपए प्रति किलो, वहीं आलू के दाम 50 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए हैं. कम सप्लाई और डिमांड में तेजी के चलते कीमतों में काफी उछाल देखने मिल रहा है. हालांकि सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का असर फिलहाल यहां नहीं दिख रहा है. बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों ने जरूरत से कम आलू प्याज खरीदना शुरू कर दिया है. इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि बाजार में आलू प्याज के दाम बढ़ने का कारण किसानों के पास आलू प्याज का स्टॉक कम होना है. अगर नया आलू प्याज बाजार में नहीं आता है तो दाम 60 से 80 रुपए किलो तक भी पहुंच सकते हैं. सामान्य दिनों में वडोदरा के मार्केट यार्ड में 20 से ज्यादा गाड़ियां आलू प्याज की आती है, जो फिलहाल सिर्फ 10 जितनी गाड़ियां ही आ रही है. और दूसरी ओर होटल रेस्टोरेंट शुरू कर दिए जाने से आलू प्याज की मांग काफी बढ़ी है, जिसके चलते फिलहाल त्योहारों के बीच घर का बजट बिगड़ता हुआ देखने मिल रहा है. मकरपुरा जीआईडीसी की वॉर्ड विजार्ड नामक इलेक्ट्रॉनिक बाइक बनाने वाली कंपनी के गोदाम में आग लगने से करीबन 150 जितनी ई बाइक जलकर खाक हो गई है. मकरपुरा जीआईडीसी के शेड नंबर 910 में ई बाइक बनाने वाली वॉर्ड विजार्ड कंपनी का गोदाम है. गोदाम में आग लगने से गोदाम में रखी हुई करीबन 150 जितनी बाइक जलकर खाक हो गई. ये आग शॉर्ट सर्किट से लगी हुई होने का अनुमान लगाया जा रहा है. घटना की जानकारी फौरन दमकल विभाग को दी गई, जिसके चलते दमकल विभाग के जवानों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि करीबन 150 जितनी नई की नई ई बाइकें कबाड़ में तब्दील हो गई. पेट्रोल बाइक के मुकाबले ई बाइक की बिक्री कम ही होती है और पिछले कुछ महीने में लॉकडाउन के चलते वाहनों की बिक्री नहीं हो रही है. ऐसे में कंपनी के गोदाम में सैकड़ों की संख्या में ई बाइकों का स्टॉक था, जो संदिग्ध रूप से लगी आग में जलकर खाक हो गया. इस आग में कंपनी मालिक को करीब 1 करोड़ रुपए के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है. एसएसजी अस्पताल के कोविड वार्ड में लगी आग की घटना को 45 दिन बीत गए हैं, लेकिन अब तक जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है, जिसके चलते कई सवाल उठ रहे हैं. वडोदरा शहर के एसएसजी अस्पताल में मरीजों को इलाज देने के लिए विशेष वार्ड बनाया गया है. इस वार्ड के आईसीयू में 8 सितंबर की शाम को आग लगने की घटना घटी थी, जिसमें कई कोरोना मरीज बाल बाल बचे थे. इस मामले जांच के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर सुधीर पटेल, गोत्री अस्पताल की डीन डॉक्टर वर्षा, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीता बोस और एमजीवीसीएल के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर बीजे देसाई की नियुक्ति की गई थी. लेकिन इस घटना को 45 दिन बीत गए होने के बावजूद अब तक इस मामले की रिपोर्ट जिलाधीश तक नहीं पहुंची है. जिलाधीश शालिनी अग्रवाल ने जल्द से जल्द इस मामले की जांच पूरी कर रिपोर्ट दिए जाने के आदेश दिए हैं. रिपोर्ट प्राथमिक रीते तो अमारो बिल्कुल तैयार थई गयो छे, पण साथे साथे एफएसएल नो जे तपास करी रही छे एनो रिपोर्ट आवो बाकी छे. ए रिपोर्ट ने पण अमारा रिपोर्ट में इनकोर्पोरेट करवानो छे. એટલે જે દિવસે આ એફએસએલનો રિપોર્ટ આવી જશે લગભગ સેમ દિવસે જ અમારી કમિટી પણ રિપોર્ટ સબમિટ કરી દેશે. કલેક્ટર દ્વારા તે સબમિટ કરવાના હતા કે શું ખાસ કરીને? હા, એ જ આ રિપોર્ટ છે એ કલેક્ટરશ્રીને અમે સુપ્રત કરવાના છીએ.
गौरतलब है कि ये आग सरकार द्वारा खरीदे गए धमण वेंटिलेटर से लगी थी और धमण वेंटिलेटर पर पहले ही काफी सवाल उठ चुके हैं। ऐसे में इस आग के जांच की रिपोर्ट नहीं देने पर भी कहीं ना कहीं धमण वेंटिलेटर का घोटाला उजागर होने की बू आ रही है। वीएनएम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए वीएनएम न्यूज और हाँ, वीएनएम टीवी की यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी वीएनएम टीवी यूट्यूब चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड। इस बार ना ही कोई ग्राउंड पर नवरात्रि होगी और ना ही वीएनएम गरबा क्वीन प्रिंस 2020 का आयोजन होगा। इसलिए वीएनएम आपके लिए लेकर आया है वीएनएम वर्चुअल गरबा 2020 में हमारे साथ जुड़िए। 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक रोजाना हम आपके लिए लेकर आएंगे वीएनएम गरबा क्वीन प्रिंस कॉन्टेस्ट के कलरफुल बेहतरीन गरबा प्लेयर के वीडियोस। हर रोज रात 10 बजे से हम आपके साथ में होंगे। श्रीराम एकेडमी 10th या 12th के बाद डिफेंस सर्विस क्षेत्र से जुड़ने के लिए भरोसेमंद नाम, जहां डिफेंस में चुने जाने की तैयारी के लिए नहीं देनी पड़ती है बड़ी बड़ी फीस। श्रीराम एकेडमी 2015 से करवाता है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, कांस्टेबल, जीपीएससी एग्जाम की तैयारी। ट्रेनिंग के बाद आप डिफेंस और सिविल सर्विसेज में हो सकते हैं भर्ती। श्रीराम एकेडमी के 1300 से ज्यादा स्टूडेंट का अब तक हुआ है सिलेक्शन। एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, आर्मी की गारंटी बैच के लिए श्रीराम एकेडमी का स्कॉलरशिप एंट्रेंस टेस्ट 11 नवंबर को। जुड़े श्रीराम एकेडमी से और देश की सेवा के साथ बनाए अपना करियर। कॉन्टैक्ट 7698813222 7490042988। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। मैं तो शणगार्यो चाचर चौक, माड़ी घर आवो ने। वीएनएम वर्चुअल गरबा 2020 में भेज दीजिए अपने खूबसूरत घर के, खूबसूरत आपके गरबा करते हुए वीडियोस। इस बार मौका मिला है पूरे परिवार के साथ घर में गरबा करने का। इस साल वीएनएम टीवी के साथ नवरात्रि मनाइए। पारुल यूनिवर्सिटी पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। इस बार गरबे होंगे घर से। यही कलरफुल एनवायरनमेंट आपको अपने घर में तैयार करना है। वीएनएम आपके लिए कुछ खास और कुछ नया लेकर आया है। घर को डेकोरेट करें, अपने ट्रेडिशनल अटायर में ड्रेसअप हो और अपने गरबा स्टाइल से मिलकर एक वीडियो शूट करें और वीएनएम टीवी के नीचे दिए हुए नंबर्स पर सेंड कीजिए, जिसे हम दिखाएंगे वीएनएम टीवी किड्स के चैनल पर। जी हाँ, आपके वीडियोस भेजने की लास्ट डेट है 24 अक्टूबर और 21 से 25 तारीख तक हम रोज वीएनएम टीवी किड्स पे आपके ये कलरफुल वीडियोस लेकर आएंगे। और इसमें भी एक एक्साइटिंग चीज है आपके लिए कि वीएनएम टीवी हर रोज एक प्राइज डिक्लेयर करेगा। चलिए मिलकर घर से नवरात्रि को इस बार सेलिब्रेट करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के आशय से समता के बालाजी नगर में एक अनोखा गार्डन शॉप खोला गया है, जहां तरह तरह के प्लांट्स रखे गए हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देते हैं।
जैविक रूप से फसल लेना और पेड़ पौधे लगाना बढ़ते प्रदूषण के बीच देश के लिए आवश्यक बन गया है। ऐसे में ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बड़े पहलू के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। देश भर में बढ़ रहे प्रदूषण के बीच अब ऑर्गेनिक फार्मिंग को काफी तवज्जो दी जा रही है। ऑर्गेनिक रूप से ली गई फसल लोगों को भी काफी आकर्षित कर रही है और ऐसे में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए शहर के समता इलाके के बालाजी नगर में अनोखे गार्डन शॉप का उद्घाटन हुआ है, जिसमें ग्रो योर हेल्थ, ग्रो योर गार्डन और ग्रीन वडोदरा ग्रीन गुजरात के मोटो के आधार पर शॉप का शुभारंभ किया गया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने वाले इस गार्डन शॉप पर ज्यादा जानकारी दी शॉप की ओनर तृप्ति नायर और ममता चौहान ने। आज एक ऑर्गेनिक मोटो के साथ ग्रीन वडोदरा और ग्रीन गुजरात के मोटो के साथ एक ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की है, जहां आपको पालक, मूली, मिर्ची हर तरीके के सीड्स आपको मिलेंगे और आप घर पर उन्हें उगा सकते हैं और हेल्दी खा सकते हैं। अब हम तृप्ति नायर और ममता चौहान उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे उनका ये पूरा फार्मिंग काम कर सकता है और कैसे इन प्रोडक्ट्स को हम यूज़ कर सकते हैं और अपनी हेल्थ का, एनवायरनमेंट का ख्याल रख सकते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक गार्डन जिसके लिए आप काम कर रही हैं, उसका विचार कैसे आया और कितने सालों से आप इसके लिए कार्यरत हैं? हाँ, मैं लास्ट 7 साल से, मतलब 7 ईयर्स से ये फील्ड में हूँ। ऐसे तो 22 ईयर्स से हमने प्रोजेक्ट जो किए थे, तो हम लोग पहले पूना में थे, यही सेम फील्ड में, कट रोज़ फ्लावर का इसमें थे। वहाँ से पूना से हम लोग अफ्रीका में शिफ्ट हुए, वहाँ पर भी सेम फील्ड था। ऐसे करते करते हुए सबसे पहले मैंने ऑर्गेनिक खेती जो सब्जियाँ उगाई है वो अफ्रीका में बहुत ही, मतलब बहुत बड़ा इसमें यूज़ होता था। तो वहाँ के जो भी लोकल इंडियंस कम्युनिटी जो था हमारा, वो मेरे फार्म में आके सब्जियाँ लेके जाते थे। और वहाँ से राम मंदिर है, वहाँ एवरी सैटरडे हनुमान चालीसा होता, तो वहाँ इंडियन सब अपना कम्युनिटी का खाना रहता था, तो वो खाना में मेरा सब्जियाँ यूज़ होती थी। तो ऐसे करके मुझे लगा कि यही, मतलब वो एक खुशी बढ़ती गई कि अपना उगाया हुआ, वो भी ऑर्गेनिक, कोई उसमें केमिकल नहीं, कोई फर्टिलाइज़र नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मैं नीम ऑयल और वर्मी कंपोस्ट और वो यूज़ करती हूँ, ज़्यादा और कोई नहीं। तो ऐसे करके मुझे प्रेरणा मिली और मैं थोड़ा थोड़ा सक्सेस होती गई, लोग पसंद करने लगे, वो लोग खाने लगे। उसके हिसाब से मुझे होगा कि नहीं, अभी मुझे इसमें ही जाना है। और केमिकल और फर्टिलाइज़र का मुझे उसका रिज़ल्ट पता है कि अभी हम लोग कितना ख़राब उसका सामना करते हैं, क्या क्या डिसीज़ होते हैं वो खाने से। क्यों ना हम थोड़ा सा खाएं लेकिन ऑर्गेनिक में जाए। तो लास्ट 7 ईयर से मैं इसमें फील्ड में हूँ। लास्ट 3 साल से मैं अच्छी तरह सक्सेस हूँ। मैंने एक छोटा सा किचन गार्डन भी लास्ट 2-3 प्रोजेक्ट किए, 100% वो मैं सक्सेस हूँ। आपका जो मोटो है ग्रीन वडोदरा ग्रीन गुजरात, उसे थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। ग्रीन बड़ौदा ऐसे करके मैं खुद अकेली करूँगी तो नहीं होगा, उसके साथ में मुझे न्यू यंग जनरेशन साथ में चाहिए। तो उसके लिए मैं वर्कशॉप देती हूँ, स्कूल्स में वर्कशॉप देती हूँ फ्री, कोई भी जो टाइम में बुलाएंगे, जो टाइम पे, कि बच्चे लोग अवेयर होंगे तो अपना फ्यूचर अवेयर होगा ग्रीन के लिए। तो इसलिए मुझे अकेले से नहीं होगा, मुझे पूरा टीम चाहिए। और मुझे सराउंडिंग अपना सोसाइटी से शुरू करो, अपना घर से उसको ग्रीन करो, अपना सोसाइटी में जहाँ रहते हो आप वो ग्रीन करो, बाद में फिर और आप जगह पे जाओ और ग्रीन करो। बड़ौदा को मतलब इस तरीके से करना है। और बहुत सारे ग्रुप ऐसे जॉइंट हुए कि जो अपनी अपनी सोसाइटी का जिम्मेदारी लेके सराउंडिंग वो ग्रीन कर रहे हैं। तो मेरा यही है कि मुझे बड़ौदा ग्रीन करना है, गुजरात ग्रीन करना है। उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, रात में दिन में जो भी काम करना पड़े, मैं तैयार हूँ, मेरा टीम भी तैयार है। बहुत सारे कस्टमर आते हैं कि हम लोग तो मैडम फ्लैट में रहते हैं, वहाँ क्या करेंगे। नहीं, आप छोटा सा फ्लैट में, छोटी सी गैलरी में भी 2 मिर्ची का पेड़, 2 बैंगन का, 2 टमाटर का डाल के भी आप ग्रो कर सकते हो। एटलीस्ट आप 2 मिर्ची घर का तो खाओगे ऑर्गेनिक। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप गार्डन में ही जगह होनी चाहिए आपके पास। में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है घर का, और ये 24 आवर्स ये ऑक्सीजन देते हैं। जैसे है स्नेक प्लांट्स है, सेंसोवेरिया उसको बोलते हैं, उसमें 2-3 वेराइटी है। गोल्डन पाम है, मनी प्लांट है, तो मनी प्लांट है, पाम ट्री है। तो ये सब आप क्या है कि घर में रखिए इसको, आपके सराउंडिंग जहाँ आप सोते हो, आप स्टडी टेबल है, आपका डाइनिंग टेबल है, उसके पास में प्लांट्स रखे, ऑक्सीजन ही देगा। मेनली ये इंडोर प्लांट्स हैं
और अभी हमारा मेन उद्देश्य ये है कि दिवाली पास में है, तो हम ये चाहते हैं कि दिवाली में लोग स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो साथ में ये जो हमने स्पेशली सिरामिक के और मिट्टी के पॉट्स और बास ये इको फ्रेंडली पॉट्स बनाए हमने, और इसमें ये इंडोर प्लांट्स उगा के हम ये चाहते हैं कि लोग दिवाली पे, बर्थडे पे इसके साथ एक एक यदि प्लांट्स हर एक घर में जाता है तो इससे हमें रिसाइकिल होके वापस वो प्लांट्स उगते हैं और घर में ऑक्सीजन एनवायरनमेंट हमारा सुधरता है, आसपास का पूरा वातावरण सुधरेगा। और ये गिफ्ट के लिए स्पेशली हमने ये दिवाली के पहले ये एग्जीबिशन आज जो स्टार्ट कर रहे हैं उसका मेन पर्पस हमारा यही है। ये हमारे जो नारियल की जो रेशे होते हैं उससे स्पेशली बनाए गए हैं, कोकोपीट बोलते हैं इसको, और इसमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं है। आप इसको घर में भी रख सकते हैं, पानी इसमें से नीचे नहीं जाएगा, इसमें से आप गार्डन में रख सकते हैं, इसको हैंगिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको टोटली केमिकल फ्री और इको फ्रेंडली पॉट्स हैं ये। हमारे पास अभी और कौन से प्रोडक्ट्स हैं और वो कैसे काम करेंगे, किस तरीके से लोगों को बेनिफिट करेंगे और बिना केमिकल की चीज़ें हेल्दी हो सकती हैं उसके बारे में? बिल्कुल ऑर्गेनिक ही हमारा कॉन्सेप्ट है। ये जो हम लोगों ने कंपोस्ट खाद और फर्टिलाइजर्स बनाए हैं ये भी घर में इको फ्रेंडली हैं और ऑर्गेनिक है, इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल यूज़ नहीं किया गया है। तो जनरली हम घर में एनिमल्स वगैरह होते हैं और हम जो खाद डालते हैं तो उस समय काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है कि अपने पास ये घर में पेट्स हैं तो उनको हम नहीं जाने दे सकते, बच्चों को हाथ नहीं लगाने दे सकते। मगर ये जो हमारा ऑर्गेनिक वाला कॉन्सेप्ट है इसमें किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है, और उसके अलावा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे बॉडी में केमिकल नहीं जाएगा किसी भी तरह का, टोटली ऑर्गेनिक फूड हम इंटेक करेंगे, तो ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। इसको सीडलिंग ट्रे बोलते हैं। आप इसके अंदर थोड़ा सीड्स, मतलब इसको कैसे है कि जैसे कोई न्यू है उसको जो जर्मिनेशन करना नहीं आता है तो उनके लिए ये ईजी है। तो इसको ये आप ये पानी का इसमें डाल दीजिए। आप पानी में ऐसे डालोगे, आप इसमें पानी डालोगे तो ये विदिन वन मिनट में, 1 सेकंड में तो ये फूल के ऐसा हो जाएगा। अब उसके अंदर होल बना के इसमें शीट्स कोई भी डाल के उसको अच्छी तरह ग्रो कर सकते हो और रख दो। ग्रो होने के बाद में सीधा ये बैग के साथ में ही आप उसको कोई भी ज़मीन में या गमले में डालना है तो डाल सकते हो, मतलब डायरेक्ट प्लांटेशन हो सकता है। तो इसके अंदर ही ये करने के बाद क्या है कि न्यू जो जिसको नया है उसके लिए ये बहुत आसान मेथड रहता है। और ये कोकोपीट प्लेट है, डिश बोलते हैं उसको, तो ये थोड़ा सा मेडिसिन के साथ में, ऑर्गेनिक मेडिसिन के साथ में ये तैयार किया हुआ है। और ये है हमारा कोकोपीट ब्लॉक्स, जो कोकोपीट मतलब ये गमले में यूज़ करते हैं, जो लाइट वेट होता है और जो पोरस होता है, जो ऑक्सीजन एयर सर्कुलेशन सब अच्छे इजीली होता है। तो ये मिट्टी को सॉफ्ट करता है। मिट्टी जो हार्ड हो जाती है वो ये डालने से नहीं होगा, और गमला लाइट वेट भी होगा, तो लेडीज़ को या किसी को, बच्चों को मूवमेंट करने के लिए आसान रहेगा। जूट बैग किस तरीके से हेल्पफुल रह सकता है उसके बारे में हमें बताएंगे जी। एक्चुअली ये कैसा है कि आप इसको मतलब बजाय गमला के भी यूज़ कर सकते हो। आपको इसके लिए गमले का ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसमें प्लांटेशन कर सकते हो जैसे मैंने ये किया है। तो उसके लिए कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप इजीली उसको घर में रख सकते हो, गार्डन में रख सकते हो। पानी का ये है कि उसको जिसकी मात्रा में पानी चाहिए उतना ही आप पानी दीजिए, और एक्सेस वाटर होगा, आप 1 या 2 बार डालोगे, लीक होगा, बाद में आपको उसका जजमेंट पता चलेगा इसमें कितना ही पानी चाहिए। तो आपको प्लांट्स को 1-2 दिन पानी भी नहीं डाला तो भी उसको पानी मिलता रहता है। ये मतलब कॉयर पॉट यूज़ करने का यही एक रीज़न है। और इको फ्रेंडली है। तमिलनाडु में ऐसे 2 ऐसे गांव है, विलेज है, जहाँ उनके पास ये सब प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं, और वो 2 टाइम उनका खाने का बंदोबस्त होता है। तो एक एम्प्लॉयमेंट, हम लोग उनको एम्प्लॉयमेंट दी, मतलब एक रोजगारी दिया है। आप एक चीज़ खरीदोगे उसके पीछे कितने लोगों को हेल्प होगा, कितने लोगों का रोजी रोटी इस पे चलेगा। यहाँ हर तरीके के सीड्स आपको मिलेंगे, पालक, मिर्ची, कई तरीके के सीड्स आपको मिलेंगे। आप यहाँ आकर ले जा सकते हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां उगाकर आप अपनी हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं। 31 अक्टूबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, और उसी के चलते केवड़िया के आसपास का इलाका रोशनी से जगमगा उठा है। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जन्म जयंती पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाएगा।
जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शरीक होने वाले हैं। इस कार्यक्रम की तैयारियां इन दिनों जोरों पर है। तैयारियों के भागरूप केवड़िया और आसपास के इलाके को रोशनी से सज्ज कर दिया गया है। करीबन 25 किलोमीटर के इलाके में रंग बिरंगी लाइट लगाकर अनोखा आकर्षण पैदा किया गया है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए हजारों सैलानी आते हैं। ऐसे में रंग बिरंगी लाइटें सैलानियों को काफी आकर्षित करेगी। एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी द्वारा दिए गए परिणामों में कई छात्रों को फेल किया गया है और साथ ही कॉमर्स फैकल्टी में नए प्रवेश पाने वाले छात्रों को प्रवेश में काफी दिक्कतें आ रही है। इस मामले एबीवीपी ने हेड ऑफिस पर हंगामा मचाया। आज रोज एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पे जो रजिस्टर सर विशेष सर उनको आवेदन दिया जा रहा है कि जो विद्यार्थी लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो उनका अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया। जो स्टूडेंट अनफेयर मीन्स में डाले गए तो उनको यूनिवर्सिटी तरफ से कोई नोटिफिकेशन या कुछ क्यों नहीं भेजा गया। जो विद्यार्थी सब समस्या है वो सब यहाँ पे टीआई के विद्यार्थी आए तो विशेष सर अभी तक आए नहीं। विशेष सर अपने घर पे खाने के लिए चले गए। यहाँ पे सब स्टूडेंट बैठे हैं अकेले जो भूखे हैं, लेकिन विशेष सर अपने घर पे खाने के लिए चले जाते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सब स्टूडेंट को आंसर देना पड़ता है। मैं कॉमर्स फैकल्टी में एडमिशन લીધું છે ફર્સ્ટ યરમાં FI BCom માં। મેં 3જી તારીખે 24 તારીખનો ફીનો મેસેજ આવ્યો તો મેં પે કરી 3જી તારીખે। તો એમને મેં 5મી તારીખે મેં હેડ ઓફિસ આવી તો એમને મને કીધું કે અહીંયા ઘડી ફી આવી નથી। બેંકમાં ઇન્ક્વાયરી કરી તો એમને કીધું કે MS માં જ ગયા છે। તો એમને હજુ એવું કહે છે કે ફરી ફી ભરો। તો મેં પરમ દિવસે આવીને ફરી ફી ભરી છે અને હવે મારે પેલી જે પહેલી વખત મેં ભરી છે એ મારે હવે રિફંડ જોઈએ છે અને એ બી મેં 4 જ દિવસમાં। હવે મારે ધક્કા નહીં ખાવા। એમએસ યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓ આજે એ રજૂઆત લઈને આવ્યા છે કે જે વિદ્યાર્થીઓના રિઝલ્ટ્સ ડિક્લેર નથી થયા તેને જલ્દીથી ડિક્લેર કરવામાં આવે। વિદ્યાર્થીઓને તે સમજાવવામાં આવ્યું કે 3 તબક્કાની જે પરીક્ષાઓ છે એમાંથી 2 તબક્કાની પરીક્ષાઓની અંદર વિદ્યાર્થીઓના જે રિઝલ્ટ ડિક્લેર થઈ ગયા છે અને તેમાંથી બાકી રહેલા વિદ્યાર્થીઓની અંદરથી અનફેર મીન્સ કેટલા છે તે પણ જાહેર કરી દીધું છે। માત્ર 3rd ફેઝની અંદર જે વિદ્યાર્થીઓ છે તેની અનફેર મીન્સની અત્યારે રચના થઈ ગઈ છે અને તેની સ્ક્રુટની ચાલી રહી છે। એટલે એવું કહી શકાય કે 6001 વિદ્યાર્થીઓમાંથી જે 725 વિદ્યાર્થીઓના રિઝલ્ટ ડિક્લેર નથી થયા તેમાંથી 125 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ અત્યારે અનફેર મીન્સની અંદર છે। બાકીના વિદ્યાર્થીઓના રિઝલ્ટ આવતા અઠવાડિયાના એન્ડ સુધીની અંદર ડિક્લેર થઈ જવાની સંભાવના છે। વિદ્યાર્થીઓ કહે એ પ્રમાણે એમણે આપ્યું હોય એવું બને નહીં। એ ખરેખર સબ્જેક્ટિવ છે કે એ ખરેખર એમણે કેટલા પ્રશ્નો ઓપ્ટ કર્યા છે એમાંથી સાચા કેટલા છે એ પ્રમાણે જેના માર્ક થાય। એ હ્યુમન બીંગ નહીં પણ કોમ્પ્યુટરની ગણતરીથી જે વસ્તુ થાય એટલે એની અંદર કોઈ એરર ન હોઈ શકે। એમણે આ જ રજૂઆત સાહેબને કહેવી છે અને હમણાં સાહેબ આવે એટલે વિદ્યાર્થીઓ તેમને મળશે અને સાહેબ પણ તેમને સાંભળશે અને જે કંઈ પણ નિવારણ લાવવાનું હશે વિદ્યાર્થીના હિતની અંદર ચોક્કસ લાવીશું। वडोदरा में आज गुरुवार को जारी किए गए बुलेटिन में 96 कोरोना केस पॉजिटिव होने की जानकारी दी गई है, जिसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या 14,203 हो गई है। वडोदरा महानगर पालिका ने गुरुवार को 96 कोरोना केस पॉजिटिव होने की जानकारी दी है, जिन्हें मिलाकर शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 14,203 हो गई है। पिछले 24 घंटों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 3,509 लोगों के कोरोना सैंपल लिए गए, जिसमें से 3,413 सैंपल नेगेटिव आए हैं, जबकि 96 सैंपल पॉजिटिव आए हैं। शहर में अब तक कोरोना से आधिकारिक रूप से 209 लोगों की मौत हो गई है। शहर में कोरोना के 1,587 एक्टिव केस हैं, जिसमें से 1,370 मरीज स्टेबल हैं, 160 मरीज ऑक्सीजन पर है, जबकि 57 मरीज वेंटिलेटर पर अपना इलाज करवा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 101 मरीज कोरोना के डिस्चार्ज भी हुए हैं। शहर में कोरोना से रिकवर होने वालों की संख्या 12,407 हो गई है। कल मनाए गए पुलिस स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में एसआरपी ग्रुप द्वारा बीती शाम बैंड बजाकर शहीद हुए पुलिस जवानों को याद किया गया। 21 अक्टूबर के दिन को पुलिस एनुअल फ्लैग डे के रूप में पूरे भारत भर में मनाया जाता है। इस मौके पर देश की सेवा में शहीद हुए पुलिस जवानों को विशेष रूप से याद करने की परंपरा है। इसी के भागरूप भारत सरकार और गुजरात सरकार के संयुक्त तत्वाधान से एसआरपी ग्रुप के बैंड द्वारा शहर में विभिन्न जगहों पर परफॉर्म करते हुए शहीदों को याद किया गया। एसआरपी ग्रुप 1 और एसआरपी ग्रुप 9 ने साथ मिलकर शहर के लक्ष्मी विलास पैलेस निकट बैंड से परफॉर्म कर पुलिस स्मृति दिवस को विशेष रूप से मनाया। 21 ऑक्टोबर पुलिस संभाळना दिवस तरीके उजववा माटे वडोदरा सिटी में अलग अलग जग्याओं में एसआरपी ग्रुप 1 तथा एसआरपी ग्रुप 9 ने बैंड टीमों अलग अलग जगह पर बैंड डिस्प्ले बताड़शे।
સર કયા ઉદ્દેશ દ્વારા રાખવામાં આવ્યું છે? આ પોલીસ સંભાળના દિવસ તરીકે જાહેર થયેલ છે 21 ઓક્ટોબર 2020 તે અનુસંધાને જાહેર થયેલ છે। चांदोद में नयन शास्त्री महाराज द्वारा निर्माणाधीन परमहित आध्यात्मिक संकुल के निर्माण की समीक्षा हेतु वैष्णवाचार्य द्वारकेश लाल महाराज आध्यात्मिक संकुल पहुंचे। पवित्र यात्रा धाम चांदोद में कथाकार नयन शास्त्री महाराज द्वारा परमहित आध्यात्मिक संकुल बनाया जा रहा है, जहां यज्ञशाला, गौशाला, ज्ञान कुटीर, मंदिर समेत के कई निर्माण जारी है। वैष्णवाचार्य द्वारकेश लाल महाराज आज इस निर्माण कार्य के निरीक्षण हेतु चांदोद में बन रहे आध्यात्मिक संकुल पहुंचे और इस निर्माण कार्य की सराहना की। परमहित धाम आध्यात्मिक संकुलना चाणोदना आ दिव्य स्थान में आदरणीय અને પ્રિય એવા શ્રી નયનભાઈ શાસ્ત્રીજી દ્વારા જે આ આધ્યાત્મિક સંકુલનું જનહિતાર્થ અને પરમહિતાર્થ સમાજના પ્રત્યેક વ્યક્તિને આધ્યાત્મિક ચેતના પ્રદાન કરીનાર અને એના સકલ આધિવ્યાધિ ઉપાધિના અનેક સંકલ્પો અને અનેક પ્રકારના કષ્ટોને દૂર કરવા માટેનું આ એક સર્વના હિતનું વિચાર કરવા માટેનું જે પરમહિત ધામ निर्मित થયું છે, જેમાં પંચતત્વોની સ્થાપનાની સાથે સાથે ગૌશાળા, યજ્ઞશાળા, મંદિર, અનેક પ્રકારના પ્રકલ્પોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આ ભૂમિ સાચા અર્થોમાં ચેતના ભૂમિ છે અને અલગ અલગ પ્રકારના આ પ્રકારની સાધનાઓ દ્વારા આને ખૂબ દિવ્યતા પ્રાપ્ત થઈ રહી છે। ત્યારે આ પરમહિત ધામના આ દિવ્ય સ્થળને વંદન કરી મારી શુભેચ્છાઓ પાઠવી રહ્યો છું। परमहित धाम आध्यात्मिक संकुल चाणोद खाते આજરોજ ષષ્ઠપીઠાધીશ્વર પરમપૂજ્ય ગોસ્વામી 108 શ્રી દ્વારકેશલાલજી મહારાજશ્રીની દિવ્ય ઉપસ્થિતિ અને પધરામણીના અંતર્ગત આ જગ્યા ઉપર નિર્માણાધીન યજ્ઞશાળા, ગૌશાળા, ધ્યાન કુટીર, મંદિર તથા પંચતત્વના સાનિધ્યમાં પ્રકૃતિના સાનિધ્યની અંદર દરેક પરિવારને સુખ, શાંતિ, સમૃદ્ધિ મળે એવા પ્રકલ્પ સાથે જે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે એનું અવલોકન, એનું નિરીક્ષણ પરમપૂજ્ય ગોસ્વામી 108 શ્રી દ્વારકેશલાલજી મહારાજશ્રી દ્વારા કરવામાં આવ્યું તથા આ જગ્યા ઉપર અનેક સારા કાર્યો, સત્કાર્યો થતા રહે એવા આશીર્વાદ એમના મળ્યા। પરમહિત ધામ આધ્યાત્મિક સંકુલ ખાતે સર્વ ભાવિક ભક્તોનું સ્વાગત છે। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ नेशनल, रीजनल और लोकल खबरों पर। एक फटाफट नजर खबरें फटाफट में। भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में पटना में यह संकल्प पत्र जारी किया गया। इस दौरान बीजेपी ने 11 बड़े संकल्प लिए हैं और सत्ता में आने पर कई वादों को पूरा करने का दावा किया है। भाजपा ने 19 लाख लोगों को रोजगार देने और 3 लाख शिक्षकों की भर्ती का वादा किया है। इसके अलावा जैसे ही कोरोना की वैक्सीन आएगी तो उसका मुफ्त टीका लगाने का वादा भी बिहार वासियों से किया गया है। दिग्गज फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज ने दुनिया के अपने सभी कारखानों को काम बंद कर दिया है। कंपनी पर साइबर अटैक और कई सर्वर के डेटा तक बाहरी लोगों तक पहुंच जाने की आशंका से काम को फिलहाल रोका गया है। कुछ दिनों पहले ही डॉक्टर रेड्डीज को भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर जनरल से कोविड-19 के लिए रूसी टीके के भारत में दूसरे और तीसरे चरण की ट्रायल की इजाजत मिली है। सरकार ने वीजा पाबंदियों में बड़ी राहत दी है। सरकार ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिनल को वीजा देने की मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय ने बताया कि इनके अलावा विदेशी छात्र और कारोबारियों को भी भारत आने के लिए वीजा जारी किया जाएगा। हालांकि सरकार ने टूरिस्ट वीजा पर पाबंदी फिलहाल बरकरार रखी है। बंगाल का सबसे बड़ा उत्सव दुर्गा पूजा गुरुवार यानी आज से शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में हुए कार्यक्रम में दिल्ली से वर्चुअली जुड़े और बंगाल के लोगों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी। लेकिन भाजपा ने इंतजाम शायद अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए किए थे। मोदी का संबोधन दिखाने के लिए भाजपा ने बंगाल के सभी 294 विधानसभा इलाकों में 78,000 बूथों पर टीवी स्क्रीन लगाए थे। मोदी ने अपना भाषण भी बांग्ला में शुरू किया। वहां के महापुरुषों और आम लोगों की भी जमकर तारीफ की।
इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का आधे से ज्यादा सीजन बीत चुका है, लेकिन व्यावहारिक रूप से देखे जाए तो अब तक कोई भी टीम प्लेऑफ की दौड़ से बाहर नहीं हुई है। हालांकि टूर्नामेंट इस मुकाम पर है जहां 1 या 2 मैचों के परिणाम से ही किसी टीम बाहर का रास्ता तय कर देगी। इस लिहाज से देखा जाए तो आज होने वाले राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद का मैच काफी महत्वपूर्ण है। राजस्थान की टीम ने 10 में से 4 मैच जीते हैं, वहीं हैदराबाद ने 9 में से 3। ऐसे में दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला करो या मरो का मुकाबला साबित हो सकता है। कोरोना से रिकवर होने वाले 64% मरीजों में कई महीनों तक वायरस का असर देखने मिल रहा है। इलाज के बाद भी मरीजों को सांस लेने में दिक्कत, थकान, बेचैनी और डिप्रेशन की दिक्कतें आ रही है। ये रिसर्च करने वाली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर का कहना है। कोरोना का संक्रमण होने के 2 से 3 महीने बाद भी असर दिखाई पड़ रहा है। रिसर्च के अनुसार पाया गया कि 64% मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वहीं 55% मरीज थकान से परेशान है। जब कोरोना संक्रमण सामने आया था तब गुजराती फिल्मों के प्रसिद्ध हीरो नरेश कनोडिया ने भाग कोरोना भाग नामक एक गीत बनाकर लोगों को काफी जागरूक किया था। अब नरेश कनोडिया भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। अहमदाबाद के यूएन अस्पताल में फिलहाल इलाज ले रहे हैं और उनकी ऑक्सीजन लेती हुई एक तस्वीर सामने आई है जिसमें उनकी तबीयत नासाज देखी जा रही है। इसके अलावा उनके बेटे और कड़ी के विधायक हितू कनोडिया ने भी उनकी एक तस्वीर जारी कर लोगों से उनके स्वास्थ्य के लिए कामना करने को कहा है। गुरुवार को गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ इलाकों में 6 घंटे में भूकंप के 10 झटके महसूस किए गए। पोरबंदर के पास 7, जामनगर के लालपुर में 2 और कच्छ में भूकंप का 1 झटका महसूस किया गया, जिसमें इन इलाकों में डर फैल गया। हालांकि इन झटकों से किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप का केंद्र जामनगर से 28 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में दर्ज हुआ। गुजरात विधानसभा की सभी 8 बैठक जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और भाजपा के दिग्गज नेता भी चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कल गुजरात आएंगी और मोरबी, लीमड़ी, गढ़ड़ा और करजण बैठक पर चुनाव प्रचार करेगी। भाजपा के प्रत्याशियों को जिताने की अपील स्मृति ईरानी करेंगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला भी आने वाले दिनों में भाजपा प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। आमोद शहर के मल्ला तलावड़ी से आमोद जीबी तक की सड़क खस्ताहाल हो चुकी है। इस सड़क को बनाने की मांग के साथ आमोद नगर व्यापारी एसोसिएशन द्वारा आमोद मामलतदार और जिला पंचायत को आवेदन दिया गया। खस्ताहाल सड़क के चलते लोगों को यहां से आवाजाही में काफी दिक्कत आ रही है। ऐसे में सड़क की मरम्मत नहीं किए जाने पर अप्रिय घटनाओं का डर भी बना हुआ है। लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत सारी रेसिपीज ट्राई की है, कुछ रेसिपीज हमने मॉडिफाई भी की है। ठीक उसी तरह से हमने भी आपका पसंदीदा शो आपकी रसोई मॉडिफाई किया है और उसे हम लेकर आए हैं एक नए रूप में, जहां आपको अपनी रेसिपी खुद ही शूट करनी है। कैसे, आइए देखते हैं। तो आइए आज बनाते हैं क्रिस्पी फ्राइड मसाला भिंडी। सबसे पहले भिंडी को अच्छे से धो लें। इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में इसे काट लीजिए। तेल गरम करना है। कटी हुई भिंडी जो है कढ़ाई में डालनी है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे हल्के हल्के हमें फ्राई करना है, धीरे धीरे। इसे जलाना नहीं। आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है और भिंडी थोड़ी सी जो है वो श्रिंक हो गई है। और उसके बाद आप सारी भिंडी पेपर नैपकिन पे निकाल लीजिए ताकि वो एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो सोक कर लें। और अब करना है मसाला। हम डालेंगे नमक, लाल मिर्ची पाउडर, अगर आप तीखा खाते हैं तो ये रेड चिली पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, और आमचूर पाउडर। बस ये 3 मसाले हमें डालने हैं। बस मिक्स कर लेना है। क्रिस्पी फ्राइड मसाला भिंडी खाने को तैयार है। तो देखा आपने कितना आसान है अपनी रेसिपी को मोबाइल के जरिए शूट करना। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जब आप अपनी रेसिपी मोबाइल के जरिए शूट कर रहे हैं तो वो शूट आपको हॉरिजॉन्टली करना है, और दूसरा अपनी रेसिपी के बारे में खुद ऑन स्क्रीन हमारे दर्शकों को कुछ बताना भी है, ताकि हम आपको और आपकी जायकेदार रसोई को सभी के रसोई तक पहुंचा सके। तो इंतजार किस बात का, फटाफट वीडियो शूट करके स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर हमें जरूर भेजें। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज, और हाँ, VNM TV की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM TV यूट्यूब चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। VNM के समाचार आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। VNM का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि दिन भर VNM के अपडेट्स आप तक पहुंच रहे हैं। साथ ही आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह VNM मौजूद है। VNM के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए VNM। नमस्कार।